Tushar Gupta, senior editor, Swarajya magazine. Champak Kalita is from the AIUDF. He's the general secretary of the party, and RVS Mani, former undersecretary with the MHA, retired director from Government of India, joining us on the show. Champak Kalita, I'm coming to you first up. If there are terror links that are found, if the structures are found to be built on government land illegally, or the structure itself is illegal even if private, if no permissions have been taken, if a madrasa is running but no teaching is happening, but illegal activities are taking place and links are coming out, what is the government supposed to do? Why object? देखिए अगर आपका मदरसा में कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज का कोई आदमी पकड़ता है तो उसको पकड़िए, आप उसको सजा दीजिए। और अगर मदरसा भी कोई इलीगल है तो उसको भी एक्शन लीजिए। लेकिन ये जो आप तोड़ रहे हो, ऑर्डर कहाँ से आया? कोई तो इंडिया में सिस्टम है ना, कोर्ट है, कचहरी है कि ये मदरसा इलीगल है, इसको तोड़ना है। मदरसा नहीं, कोई भी बिल्डिंग आपको तोड़ना है। अभी आप देखिए आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में अल्फा, NSCN, NDFB, BLT, कई बैन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इनका लीडरन जिन इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, आप उन्हीं का तोड़ लेंगे क्या? वो बड़े बड़े, वो सेपरेटिस्ट है, वो डिक्लेयर्ड है, इंडिया गवर्नमेंट ने उनको बैन किया है, तो आप इसको आप तोड़ देंगे क्या? आप खुद ही बोलिए कि ऐसा अगर कोई किसी का घर में कोई आदमी गुनाह करे तो उसका घर ही तोड़ दे। ये कोई सिविलाइज प्रैक्टिस सोसाइटी का कोई सिस्टम हो सकता है क्या? कोई स्टेट का, कोई सरकार का? आप एक्शन लीजिए। हमारा प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अफजल बार बार बोला है, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 आप पकड़िए, आप उसको सजा दीजिए, शूट कर दीजिए, हमें कुछ नहीं लेना देना। लेकिन उसका कोई सिस्टम होगा, कोई तरीका होगा। Okay, no, that's a fair question that has been asked earlier as well. Tushar Gupta, you know, it is one thing to say you are cracking down on terror links, which is fine, and I don't think anybody can object. And if they do object and politicize it or communalize it, then, you know, that argument can be made and that debate can be had. But in this case, the official reasons for demolishing are never what the obvious reasons are, as we have seen, for example, in past in Madhya Pradesh as well. How is this justified? You know, Shivani, there is this whole talk about going through the civilized route when it comes to demolishing madrasas. But here's the thing, look at Assam as a state. Look at what has happened to the demography of the state in the last few years. There is, of course, the angle of illegal infiltration also. Your channel conducted a very elaborate report a few days back. Now, the problem is these madrasas serve as breeding grounds. Not all of them, of course, but some of them. The very few of them which have been cited with terror links serve as a breeding ground for young children to be radicalized. They are isolated first. Then shut them down, no. Tushar, one can shut them down, but why this action of raising the building? Is that more symbolic than anything else? A lot of them are built actually, again, a lot of them are actually not built by the sanction of the government. Right. They have come up just anywhere. In Assam, if you look at the border regions with Bangladesh, so many madrasas have come up and there is no record of them. That is what is happening. There is no proper documentation. There is no proper official record. There is no proper government sanctioning. And the government is left wondering, where have these madrasas come from? It's also not just But that's also the failure of the system to allow them to come up first and then, you know, raise them when a terror link comes in. But let me take that to Champak Kalita. चंपक जी, बहुत सारे केसेस जो आ रहे हैं ना, इसमें ये बिल्डिंग्स ही इलीगल होती हैं और बहुत सारी तो गवर्नमेंट लैंड पे होती हैं। जैसा कि हमने पास्ट केसेस में देखा, एक्चुअली गवर्नमेंट के पास राइट है, अगर गवर्नमेंट लैंड पे कोई इलीगल स्ट्रक्चर है तो उनको तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं बुलडोज ऐसी स्ट्रक्चर्स को, इलीगल स्ट्रक्चर्स को। नहीं, ये जो मदरसा है ये आज का नहीं है, 35 साल से है। चाहे 35 साल का हो सर, कोई लीगल थोड़ा हो जाता है अगर इलीगल है तो। मैं मेरे बात तो सुनिए। हाँ। तो आपने क्या किया, कोई इंसिडेंट किया कि एक तो आपने उसका टेरर लिंक एस्टेब्लिश किया, एलिज किया, उसके बाद आपने तोड़ दिया, तो मैसेज क्या जाता है? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए जी, अभी आसाम का जो तरबियत है या हिंदुस्तान का जो तरबियत है, जो तहजीब है, इससे आम मुसलमान ये जो दहशतगर्द तंजीम है उसका प्रभाव में नहीं आ रही है। इसीलिए ये RSS या विश्व हिंदू परिषद या ऐसा नहीं, आप इसको आप कम्युनलाइज मत कीजिए। नहीं, चंपक कलिता जी, अगर मदरसों में प्रॉब्लम है तो वो है, और वो आज की प्रॉब्लम नहीं है, 2014 से नहीं है, वो बहुत दशकों से है। ये प्रॉब्लम भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मदरसास में प्रॉब्लम है।
आसाराम बापू का आश्रम को आपने बुलडोज तो किया। उनके ऊपर तो वहाँ हुआ ना तो, एक्शन, उनके अगेंस्ट आसाराम टेरर का बापू केस का नहीं था आश्रम में तो सर। मोदी जी जाके नाच गाना किया था ना मोदी जी जाके। और नहीं, अभी ये जो हिमंत आप बिश्व टेरर शर्मा केस है, को और इन्हीं का नहीं, वन सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर और टेरर केस को आप बाकी क्राइम से मत कंपेयर कीजिए। बट मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप इधर उधर की बात मत करिए। चंपक जी, ये मत बोलिए कि ये मुसलमानों को डराने की कोशिश है। मदरसा में क्या होता है, क्या इलीगल एक्टिविटीज कुछ मदरसाओं में हो रही है, टेरर लिंक निकल रहे हैं, ये भी सच्चाई है। मदरसा में अगर कुछ होता तो लास्ट 75 साल में इंडिया का बुरा हाल होता। कुछ नहीं होता, यही तो तो आप क्लीन चिट देने वाले कौन होते हैं? अगर कुछ होता, अरे मदरसा ओपन है यार, कोई मदरसा अंडरग्राउंड नहीं है। और ये जो लोग हैं, हिमंत बिश्व हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई, सब लोग तो पिछले 20-20, 25-25, 30 साल में हुकूमत में है। कहीं भी हो, स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, तो ये देखिए अभी इनको मुसलमानों बट पहले नहीं, पहले मैं बताती हूँ आपको फर्क क्या है। पहले एक अनसेट प्रोटेक्शन